السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو سے خوبصورت، دلچسپ اور حقیقت پر مبنی اسلامی آڈیو کیسٹس اور سیڈیز کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ یہ کیسٹس اور سیڈیز قرآن مجید کی تلاوت اور ترجمے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قصص الانبیاء، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ائمہ کرام اور محدثین کی زندگیوں کے حالات و واقعات پر پیش کی جا رہی ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات پر بھی سیڈیز دستیاب ہوں گی۔ ملاحظہ فرمائیے، دارالسلام اسٹوڈیو کی ایک نئی پیشکش، حسن یوسف۔ جی ہاں، اپنے نام سے بھی زیادہ خوبصورت کہانی، اس قدر دلچسپ کہ کیا کوئی کہانی دلچسپی میں اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ دلچسپی کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں مستقل مزاجی، دیانت اور امانت جیسی صفات کے عظیم انسان کی زندگی کے تمام پہلو نمایاں نظر آئیں گے۔ جب یوسف علیہ السلام پر مشکلات اور مصائب کے پہاڑ توڑے گئے تو خود اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو احسن القصص قرار دیا۔ اس سے بڑھ کر اس کی کوئی تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قریباً پوری ایک سورت میں اس واقعے کو بیان فرمایا۔ لیجئے سماعت فرمائیں، حسن یوسف۔ دادا جان دروازہ کھولیے۔ او کیا بات ہے بھائی، کیوں شور مچا رہے ہو؟ وہ بھی رات کے وقت؟ آپ بھول رہے ہیں دادا جان۔ میں بھول رہا ہوں؟ بوڑھا ہوں نا۔ خیر، میں جو بھول رہا ہوں وہ تم یاد کرا دو، شکریہ ادا کروں گا۔ اوہو دادا جان، آپ پہلے دروازہ تو کھولیے۔ اوہو، اب اتنی سردی میں لحاظ سے نکلنا بھی تو آسان نہیں ہے۔ ارے تم یوں ہی یاد دلا دو۔ دروازہ تو پھر بھی کھولنا پڑے گا آپ کو، اور پھر ہم بھی تو باہر سردی میں کھڑے ہیں۔ تو لحاظ سے نکل کر آنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہی بتانے کے لیے تو آئے ہیں۔ اچھا بابا، اچھا، کھولتا ہوں دروازہ۔ شکریہ دادا جان، شکریہ۔ پتہ نہیں آدھی رات کے وقت ان کو کیا اوہو، 8 بج گئے۔ وہی میرا تو یہ سونے کا وقت ہے، اور پھر تم جانتے ہو میں عشاء کی نماز پڑھ کر سو جانے کا عادی ہوں۔ جی ہاں، بہت اچھی طرح، لیکن آج ہفتہ ہے۔ اوہو، اب یاد آیا، آج کہانی سنانے کا دن ہے۔ خیر بھائی، آ جاؤ اندر، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ ہاں، سنبھل کے، ہاں بس، مسحری کے دونوں طرف بیٹھ جاؤ، لحاف اپنے اوپر لے لو۔ اور ہاں، آج کون سی کہانی سنائی جائے گی؟ پچھلے ہفتے آپ نے ایک کشتی کی کہانی سنائی تھی، یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی کی کہانی، اور وعدہ کیا تھا کہ آئندہ ہفتے ستاروں کا سجدہ نامی کہانی سناؤں گا۔ ہم اس روز سے بہت ہی بے چین ہیں۔ جس کہانی کا نام ستاروں کا سجدہ ہے، وہ کہانی کیسی ہوگی؟ سچ پوچھئے دادا جان، یہ دن ہم نے بہت مشکل سے گزارے ہیں۔ کیا آپ ہمیں ہر روز یہ کہانی نہیں سنا سکتے؟ بوڑھا ہوں نا۔ ایک تو آپ ہر بات میں کہہ دیتے ہیں بوڑھا ہوں نا۔ ہاں، بوڑھا ہوں نا۔ تو پھر شروع کرے کہانی، ہمارے بے چینی کی برا حال ہے۔ اچھی بات ہے، سنو۔ ان کے 12 بیٹے تھے۔ جی؟ کیا مطلب؟ کن کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کہانی سن رہے ہیں۔ اور میں کہانی سنا رہا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ بڑے 10 بیٹے پہلی بیوی سے تھے، چھوٹے 2 بیٹے دوسری بیوی سے۔ سب سے چھوٹے بیٹے کا نام یوسف تھا۔ وہ حد درجہ خوبصورت تھے۔ چھوٹوں سے والدین کو یوں بھی بہت زیادہ پیار ہوتا ہے۔ چھوٹا ہونے کی وجہ سے ماں باپ ان کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور وہ تو تھے ہی بہت حسین و جمیل۔ بس یہی وجہ تھی ان کے سوتیلے بھائی ان سے حسد کرتے تھے، جلتے تھے، خیال کرتے تھے کہ باپ اس سے بہت محبت کرتا ہے
और उनसे तो गोया करता ही नहीं, लेकिन बच्चों ही उनका ख्याल था, वरना वालिदैन तो अपने हर बच्चे से मोहब्बत करते हैं। हाँ, तो एक रोज यूसुफ ने एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब उन्हें बहुत अजीब महसूस हुआ। वो अपने वालिद के पास आए और उनसे कहा, बाबा जान, मैंने एक ख्वाब देखा है। याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, बताओ बेटे, तुमने क्या ख्वाब देखा? उन्होंने बताया, बाबा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारों को देखा, सूरज को देखा और चांद को देखा। ये कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं, सब के सब मेरे सामने झुके हुए हैं। याकूब अलैहिस्सलाम बेटे का ख्वाब सुनकर सोच में डूब गए। उन्हें इस ख्वाब को सुनकर खुशी भी महसूस हुई और परेशानी भी। अल्लाह के नबी थे, ख्वाब की ताबीर समझ गए। चुनाचे बेटे से बोले, देखो बेटा, तुम अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को हरगिज न सुनाना। अगर कहीं तुमने उन्हें ये ख्वाब सुना दिया तो वो तुम्हारे और ज्यादा खिलाफ हो जाएंगे। यूसुफ ने वादा किया कि अपना ख्वाब भाइयों को नहीं सुनाएंगे, लेकिन आप मुझे बताएं तो सही, ये ख्वाब कैसा है, इसकी ताबीर क्या है? तब याकूब अलैहिस्सलाम ने बताया, बेटा, ये ख्वाब एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह ताला तुम पर अपना फजल फरमाएंगे और तुम्हें वो बातें बताई जाएंगी जिन तक आम आदमी की पहुंच मुमकिन नहीं होती। अल्लाह ताला तुम पर अपनी नेमतें नाजिल करेगा, वो नेमतें जो उसने तुम्हारे परदादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तुम्हारे दादा इसहाक अलैहिस्सलाम पर नाजिल की थी। यूसुफ उस वक्त बहुत छोटे थे, इन बातों का मतलब ना समझ सके। दूसरी तरफ उन्हीं दिनों यूसुफ के दूसरे भाई एक जगह मिल बैठे और आपस में कहने लगे, देखो, हम भी तो आखिर यूसुफ के भाई ही हैं। मालूम नहीं बाबा जान को यूसुफ में क्या दिखाई देता है। वो इससे कितना प्यार करते हैं और हमसे तो गोया उन्हें प्यार है ही नहीं। ये सुनकर दूसरा बोल उठा, जबकि होना ये चाहिए था कि हम बड़े भाई हैं, बाबा जान को हमसे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए थी। तीसरे ने फौरन उसकी तायीद की, बिल्कुल ठीक, बाबा जान यूसुफ के मुकाबले में हमें बहुत कम चाहते हैं। उन 10 में से एक का नाम यहूदा था। वो सबकी बातें सुनकर कहने लगा, भाइयों, इस किस्म की बातें तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं। कोई हल सोचो, हल। उन सब ने यकजुबान होकर कहा, हल। यहूदा पुरजोर अंदाज में बोला, हाँ, हल। इस पर एक ने पुरजोर अंदाज में कहा, इसका हल मेरे पास है। बाकी ये सुनकर चौंके। हल? कौन सा हल? रुबेल, लादी और नफ्ताली सब एक जुबान होकर बोले, हाँ, बताओ क्या हाल है तुम्हारे पास? इस बार शमून ने कहा। इस पर उसने कहा, तो फिर सुनो, इसका हल सिर्फ ये है कि हम यूसुफ को अपने रास्ते से ही हटा दें। यहूदा ये सुनकर हैरत से उछल पड़ा और चिल्ला उठा, तुम्हारा मतलब है हम अपने भाई को कत्ल कर दें? जवाब में कत्ल का मशवरा देने वाला बोला, हाँ, और क्या, जब तक ये जिंदा है हमारे बाबा जान हमें कुछ अहमियत नहीं देंगे। थोड़ी देर के लिए सब पर सख्ता तारी हो गया। भाई को कत्ल करना इतना खुशगवार भी नहीं था। आखिर फिर वही भाई बोला, भाई परेशान क्यों हो गए? जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। यूसुफ बेशक हमारा भाई है तो सतेला। जब तक वो बाप की नजरों के सामने है हमारी दाल नहीं गलेगी। बाप हमें कुछ नहीं समझेगा। हम उसके लिए आसमान से तारे भी तोड़ लाएं तो भी वो यूसुफ यूसुफ ही करता रहेगा। ये अल्फाज कहते हुए उसकी आवाज से गुस्सा टपकने लगा। एक और भाई बोल पड़ा, ये ठीक कह रहा है, हमारे मसले का हल यही है, हम यूसुफ को बाप से दूर कर दें।
चंद लम्हों के लिए फिर खामोशी छा गई। आखिर यहूदा ने कहा, अगर हल यही है तो फिर कत्ल करने की भी क्या जरूरत है? हम यूसुफ को किसी कुएं में डाल देते हैं। इस तरह हम कत्ल के गुनाह से भी बच जाएंगे और यूसुफ से भी हमारी जान छूट जाएगी। आखिर काफी देर की सोच विचार और बहस के बाद सभी ने इस राय से इत्तेफाक किया और उन्होंने अपने मंसूबे पर अमल करने की ठान ली। मुश्किल ये थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम एक पल के लिए आंखों से ओझल करना पसंद नहीं करते थे। मंसूबे पर अमल करने के लिए जरूरी था कि वो यूसुफ को अपने साथ कहीं बाहर ले जाएं। आखिर सोच विचार के बाद एक रोज वो सब याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए। यहूदा ने उनसे दरखास्त के अंदाज में कहा, हम सब आपके पास यूसुफ के सिलसिले में हाजिर हुए हैं। याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ का नाम उनके मुंह से सुनकर चौंक उठे और पुकारे, क्या मतलब? तुम क्या चाहते हो? यहूदा फौरन बोला, यूसुफ को हम अपने साथ जंगल ले जाना चाहते हैं। ये वहां हमारे साथ खेलेगा, इसका दिल बहलेगा। आखिर ये हमारा भाई है। आप इसके मामले में हम पर क्यों एतबार नहीं करते? हम भी तो आपकी औलाद हैं। हमारे साथ जाएगा तो हमारी इससे मोहब्बत बढ़ेगी। याकूब अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए। आखिर बोले, दरअसल यूसुफ का मिजाज तुम सबसे काफी मुख्तलिफ है। इसे खेल कूद से कोई दिलचस्पी नहीं। ये सुनकर यहूदा ने इल्तिजा की, बाबा हम चाहते हैं वो हमसे घुल मिल जाए, हमारे साथ अजनबी बनकर न रहे। यह तभी मुमकिन है जब वो हमारे साथ घूमे फिरे। लिहाजा आज तो आप इजाजत दे ही दें। याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ को उनके साथ भेजने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन साफ इनकार भी न कर सके। आखिर वो भी बेटे थे। कहने लगे, यूसुफ को कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। यहूदा ने जल्दी से कहा, इसका मतलब है आपको हम पर एतमाद नहीं? याकूब अलैहिस्सलाम ये सुनकर घबराए कि बेटे नाराज हो जाएंगे। फौरन कहा, नहीं ऐसी बात नहीं, दरअसल मैं डरता हूं। तुम खेल कूद में लग जाओ और यूसुफ को कोई भेड़िया या जंगली जानवर नुकसान न पहुंचाए। इस मौके पर शमून ने आगे बढ़कर कहा, नहीं बाबा जान, हम वादा करते हैं यूसुफ का ख्याल अपनी जान से बढ़कर करेंगे। यहूदा ने भी सीने पर हाथ मारकर कहा, हाँ बाबा जान, मैं यूसुफ की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूँ। आप बस इसे हमारे साथ जाने दें। याकूब अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए। वो यूसुफ को उनके साथ भेजना नहीं चाहते थे, दूसरी तरफ इनकार करके उन सबको नाराज भी नहीं करना चाहते थे। बिलाखिर उन्होंने एक दरमियानी राह निकाली। कहने लगे, अच्छा तुम यूसुफ से पूछ लो, मेरा ख्याल है उसे जंगल की सैर से कोई दिलचस्पी नहीं। अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो ले जाओ। इजाजत मिलने पर वो बहुत खुश हुए। मंसूबा कामयाब होता नजर आया। अब वो यूसुफ के पास आए। मंझले भाई ने कहा, यूसुफ हमारे प्यारे भाई, हम जंगल की सैर के लिए जा रहे हैं। तुम कभी हमारे साथ नहीं जाते, आज तुम साथ चलो। जंगल में तुम्हें अजीबो गरीब चीजें नजर आएंगी। हम तुम्हें फल खिलाएंगे। तुम्हें बकरी का दूध पसंद है, वो पिलाएंगे। तुम इस सैर से इस कदर लुत्फ अंदोज होगे कि बयान से बाहर है। मासूम यूसुफ उनकी बात सुनकर सोच में पड़ गए। आखिर उन्होंने कहा, मुझे इसके लिए अब्बा जान से इजाजत लेना होगी। तुम जानते हो वो मुझे कहीं भी जाने नहीं देते, नहीं मैं उनकी इजाजत के बगैर कहीं जा सकता हूं। यहूदा ये सुनकर हंसा। उसने कहा, तो मेरे भाई खुश हो जाओ, उनसे हमने पहले ही इजाजत ले ली है। कह रहे थे अगर यूसुफ तुम लोगों के साथ जाना चाहे तो मेरी तरफ से इजाजत है। इस तरह यूसुफ के भाई अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। वो उसे अपने साथ सैर के लिए ले गए। उनका बकरियों का एक रेवड़ था। वो उस रेवड़ को चराने के लिए चिरागाह जाते थे। उस रोज भी उन्होंने रेवड़ को साथ लिया और चिरागाह पहुंच गए।
यूसुफ जिंदगी में पहली बार इन चीजों को देख रहे थे। दरख्त, पौधे, फल, फूल, झाड़ियां, ये सब चीजें इन्हें बहुत भली लग रही थी। उन्हें क्या मालूम था कि भाई किस नीयत से उन्हें वहां लाए थे। अपने मतलब की एक मुनासिब जगह पर पहुंचकर पहले तो उन्होंने यूसुफ को खूब पीटा और कहा, तुम्हारी वजह से हमारा बाप हमसे मोहब्बत नहीं करता था। वो अपनी तमाम जायदाद तुम्हें देने का इरादा रखता है। नन्ही यूसुफ उनके इस सुलूक से बहुत घबराए, परेशान हुए और हैरान भी थे कि ये कर क्या रहे हैं। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इतने प्यार और मोहब्बत से साथ लाने वाले भाइयों को क्या हो गया था। जब उन्हें मार पीट कर थक गए तो बड़े भाई यहूदा ने कहा, सुनो मेरे भाइयों, तुमने घर से चलते वक्त अहद किया था कि यूसुफ को जान से नहीं मारोगे, लिहाजा हमें अपने अहद को निभाना है। हम इसे हलाक करने का गुनाह अपने सर नहीं लेंगे और इसे कुएं में डाल देते हैं। चुनाचे वो उन्हें कुएं के पास लाए। कुएं को उन्होंने पहले ही ताड़ लिया था। वहां उन्होंने यूसुफ की कमीज उतारी। वो रोने लगे और बोले, मेरे भाइयों, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो, मैं तो तुम्हारा भाई हूं। तुम बाबा को क्या जवाब दोगे? मेरे बगैर उनका क्या हाल होगा? उन्होंने यूसुफ की एक न सुनी। मिलकर उन्हें उठाया, कुएं में लटकाया और फिर हाथ छोड़ दिए। उफ मेरे अल्लाह, उन्होंने सचमुच उन्हें कुएं में गिरा दिया? हाँ बेटी, सुनती जाओ। लेकिन दादा जान, कुएं में तो पानी होता है, वो तो फिर डूब गए होंगे। नहीं, उस कुएं में पानी नहीं था, खुश्क था, अंधा कुआं था। मुझे डर लग रहा है। बेचारी यूसुफ को उस वक्त क्या हाल होगा? हाँ, सुनते जाओ। उन्हें कुएं में गिराकर भाइयों ने इत्मीनान का सांस लिया। ख्याल किया कि उनके रास्ते का कांटा निकल गया है। अब उन्हें फिक्र थी तो ये कि बाबा को कैसे मुतमईन करेंगे। उसकी तरकीब भी उन्होंने सोच तो ली थी, लेकिन परेशानी अपनी जगह थी। उन्होंने एक बकरी ज़बह की, उसका खून यूसुफ की कमीज को लगाया और वो कमीज लिए देर से घर लौटे। याकूब अलैहिस्सलाम उनका बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। फौरन उनकी तरफ लग गए। यूसुफ को उनके साथ न पाकर पुकार उठे, यूसुफ कहाँ है? उन्होंने रोनी सूरतें तो पहले ही बना रखी थी। कहने लगे, बाबा जान, हम जंगल में खेल में लग गए, एक दूसरे से दौड़ लगाने लगे। हमने अपने कपड़ों और सामान के करीब यूसुफ को बिठा दिया था। जब हम उस जगह लौटे तो एक भयानक मंजर देखा। एक खौफनाक भेड़िया यूसुफ को खा रहा था। दूसरा कहने लगा, दरअसल जिस भेड़िए ने यूसुफ पर हमला किया था बहुत बड़ा था। हमने मिलकर यूसुफ को उस मूजी से छुड़ाना चाहा, लेकिन हमारे हाथों में सिर्फ यूसुफ की कमीज ही आ सकी। आंखों से आंसू बहाते भाइयों ने सबूत के तौर पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की खून आलूद कमीज सामने रख दी। कमीज सही सलामत थी, बस उस पर जा बजा खून लगा था। कमीज दिखाते हुए यहूदा कहने लगा, और बाबा, हमें मालूम है हम आपको लाख यकीन दिलाएं, आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं आएगा। हम सबूत ही पेश कर सकते हैं, और वो है ये कमीज। अफसोस, उस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम का क्या हाल हुआ होगा, इसका अंदाजा तुम लगा ही सकते हो। वो बुरी तरह निढाल हो गए। फिर यूसुफ की कमीज का ख्याल आया, उसको उठाया, देखा। कमीज को देखते ही वो सारा मामला समझ गए। वो कहीं से भी फटी हुई नहीं थी, सामने की बात थी। अगर भेड़िया यूसुफ पर हमला करता और भाइयों ने उसे छुड़ाने की कोशिश की होती तो कमीज सही सलामत नहीं रह सकती थी। याकूब अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि उसके बेटे उसे धोखा दे रहे हैं। चुनाचे उन्होंने कहा,
اگر بھیڑیے نے یوسف کو کھایا ہوتا تو قمیص درست حالت میں نہ ہوتی. تم نے شاید یوسف کو ہلاک کر دیا، یا پھر یوسف زندہ ہے اور تم نے اسے کسی کے ہاتھ بیچ دیا. خیر، میں تو اپنے اللہ سے ہی مدد چاہوں گا. تمہاری مکاری مجھ پر کھل چکی، اب تم میرے سامنے سے ہٹ جاؤ. یوسف کے بھائی بہت نادم ہوئے اور سر جھکائے اٹھ کھڑے ہوئے. اور دادا جان یوسف ان کا کیا بنا؟ وہ کنویں میں بھوکے پیاسے بیٹھے تھے. انہیں رہ رہ کر بابا کا خیال آ رہا تھا. ایسے میں ملک شام سے مصر جانے والا ایک قافلہ اس طرف سے گزرا. قافلے کی نظریں کنویں پر پڑی. قافلے والے پیاسے تھے. کافی دیر سے انہیں پانی نہیں ملا تھا. کنویں کو دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی. اس زمانے میں کنویں تجارتی قافلوں کے راستوں پر بنائے جاتے تھے تاکہ مسافروں کے کام آ سکے. ان میں سے ایک مسافر نے پانی دیکھنے کے لیے کنویں میں جھانکا. وہاں پانی کی بجائے اسے ایک لڑکا دکھائی دیا. وہ حیرت زدہ رہ گیا. وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا. مفت میں ایک مال ہاتھ لگا تھا، کیونکہ بچوں اس زمانے میں انسانوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا اور غلاموں کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی. کنویں میں لڑکے کو دیکھ کر وہ وہیں سے چلایا، قافلے والوں خوش ہو جاؤ، ایک لڑکا ہاتھ آیا ہے. قافلے والے کنویں کی طرف دوڑ پڑے. کنویں میں ڈول ڈالا گیا. اس طرح انہوں نے یوسف کو کنویں سے باہر نکال لیا. انہوں نے یوسف سے کچھ نہ پوچھا، نہ یوسف نے ان سے کچھ کہا. وہ سمجھ گئے تھے کہ قافلے والے انہیں دیکھ کر کیوں خوش ہوئے ہیں، اس لیے وہ خاموش رہے. قافلے والے انہیں غلاموں کی منڈی میں لے آئے. جی دادا جان، کیا کہا آپ نے؟ غلاموں کی منڈی؟ ہاں بھائی، غلاموں کی خرید و فروخت کے لیے منڈیاں ہوتی تھیں. ایک شخص ان کی طرف بڑھا. وہ خوشپوش تھا. اس نے یوسف کو غور سے دیکھا، پھر بولا، یہ لڑکا تو کسی صورت غلام معلوم نہیں ہوتا. جناب آپ خریدنے کی بات کریں، یہ غلام ہی ہے. ہم نے اسے خوب کھلایا پلایا ہے، اسی لیے تو یہ ایسا ہے. ٹھیک ہے، تم اس کی قیمت بتاؤ. جناب آپ خاندانی آدمی لگتے ہیں، آپ سے کیا بھاؤ تاؤ کریں، جو مناسب سمجھیں دے دے. خریدار کے ساتھ اس وقت ایک ملازم بھی تھا. اب وہ بولا، اے تاجر، میرے آقا ملازموں کی فوج کے ساتھ نہیں آئے، ورنہ تمہیں ان سے یوں بے باکی سے بات کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. یہ شاہ مصر کے خاص وزیر ہیں. یہ سن کر قافلے والے حیران رہ گئے. ایک نے کہا، تو کیا یہ عزیز ہیں؟ جی کیا مطلب دادا جان؟ عزیز کیا؟ بتا رہا ہوں بھائی، بتا رہا ہوں. ان دنوں مصر پر عمالقہ خاندان کی حکومت تھے. وہ لوگ غیر مصری نسل سے تعلق رکھتے تھے. وزیر کو عزیز کے لقب سے پکارا جاتا تھا. ہاں، تو عزیز کے ملازم نے اپنے آقا کا تعارف کراتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، یہ عزیز مصر فوتی فار ہے. شاہ مصر نے انہیں وزیر خزانہ بنایا ہے. تعارف کے بعد اس نے سکوں کی تھیلی میں ہاتھ ڈالا، مٹھی بھر سکے لیے اور تاجر کو دے دیے. اس نے وہ سکے لیے اور یوسف کو ان کے حوالے کر دیا. اللہ اکبر، بیچارے یوسف کہاں سے کہاں پہنچ گئے. سنتے جاؤ. عزیز مصر فوتی فار نئے غلام کو لیے گھر کی طرف آیا. بچوں، چند برسوں کے بعد جب یوسف نے لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھا تو ان کی خوبصورتی کو اور 4 چاند لگ گئے. ہر کوئی ان کے حسن سے متاثر ہونے لگا. سونے پر سہاگا یہ کہ ان میں شرافت کوٹ کوٹ کر بھری تھی، ایمانداری میں سب سے بڑھ کر تھے. یوسف علیہ السلام کو وہاں رہتے ہوئے 7 سال کا عرصہ بیت گیا. انہیں اب عزیز مصر کا ہر طرح کا اعتماد حاصل ہو گیا تھا.
उन्हीं दिनों उन्होंने महसूस किया अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा का रवैया उनके साथ बदला हुआ है। एक दिन जुलेखा ने उन्हें बुरी नीयत से अपने कमरे में बुलाया और अपने दिल की वो बात कह दी जिसका ख्याल भी कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम दिल में नहीं ला सकते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम हद दर्जे पाक दामन थे, फिर अल्लाह ताला के नबी भी बनने वाले थे, इसलिए अल्लाह ने उनकी हिफाजत की और उन्हें हर गलती से बचाया। उन्होंने जुलेखा की बात मानने से साफ इनकार कर दिया और उसे शर्म भी दिलाई कि वो अपने शौहर से बेवफाई न करे, मगर जुलेखा के सर पर बुराई का भूत सवार था। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए भागे, यूसुफ खुद को उससे बचाने के लिए भागे। जुलेखा की रफ्तार तेज थी, उसने उनकी पीछे से कमीज पकड़ ली। यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर भी न रुके, कमीज छुड़ाने के लिए झटका दिया। कमीज तो उन्होंने छुड़ा ली, लेकिन वो फट गई और उसी लम्हे इत्तेफाक से अजीज मिस्र फूतीफार एक और शख्स के हमरा वहां पहुंच गया। जुलेखा ने शौहर को देखा तो फौरन रंग बदल लिया और पुकार उठी, ए अजीज, उस शख्स की क्या सजा है जो तेरे खानदान की इज्जत पे हाथ डालने का इरादा रखता हो? अजीज मिस्र धक से रह गया। उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम सकते में आ गए। उन्होंने भाइयों की बेवफाई देखी थी, अब वो जुलेखा के तेवर देख रहे थे। उन्हें उसका झूठ सुनकर गुस्सा भी आया। फौरन बोले, ये झूठ कहती है, इसने मुझे बहकाने की कोशिश की, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। उनकी बात सुनकर जुलेखा चीखने लगी, ये खुद झूठा है, इसका इरादा बुराई का था। इस मौके पर फोतीफार के साथ आने वाले शख्स से रहा न गया, बोल उठा, ए अजीज मिस्र, ये मालूम करना बहुत आसान है कि कौन कसूरवार है। देखना यह है कि जुलेखा यूसुफ के पीछे भागी थी या यूसुफ जुलेखा के पीछे। अगर यूसुफ की कमीज पीछे से फटी है तो साफ जाहिर है जुलेखा उसके पीछे थी और यूसुफ सच्चा है, और अगर यूसुफ की कमीज आगे से फटी है तो फिर जुलेखा का ये कहना दुरुस्त है कि यूसुफ ने इसकी इज्जत पर हमला किया है और वो ही मुजरिम है। ये सुनकर फूतीफार ने फौरन यूसुफ अलैहिस्सलाम को कमीज दिखाने का हुक्म दिया। उसने देखा उनकी कमीज पीछे से फटी थी। सच सामने आ गया। उसने जान लिया जुलेखा झूठ बोल रही थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल सच्चे थे। फूतीफार ने अपनी बीवी को सख्त बुरा भला कहा और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि वो इस वाक़े का जिक्र किसी से न करे। लेकिन फूतीफार के साथ आने वाले शख्स ने उस वाक़े का जिक्र दूसरे लोगों से कर दिया। ये शख्स जुलेखा का रिश्तेदार था और शाही खानदान से ताल्लुक रखता था। उसके जरिए से जब शाही खानदान की औरतों तक जुलेखा की बात पहुंची तो उन सब ने जुलेखा का खूब मजाक उड़ाया। उनमें कई जुलेखा की सहेलियां थी। वो उसे ताने देने लगी और कहने लगी, तुम पर अफसोस, एक गुलाम लड़का तुम्हारी बात न मान सका। जुलेखा ने उन्हें बताया, यूसुफ हरगिज़ आम लड़का नहीं है। वो जिस कदर खूबसूरत है उसी कदर नेक है। मगर उसकी सहेलियों को यकीन ना आया। तब जुलेखा ने अपनी बात साबित करने के लिए एक तरकीब सोची। रुक क्यों गए दादा जान, क्या आप थक गए? देख रहा था तुम लोग सुनते सुनते कहीं सो तो नहीं गए? जी नहीं, मारे बेचैनी के हमारा तो बुरा हाल है। जल्द अज जल्द पूरी कहानी सुन लेना चाहते हैं। खूब खूब, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, तो मैं कह रहा था, जब जुलेखा का खूब मजाक उड़ा तो उसने अपनी सहेलियों को जवाब देने के लिए एक तरकीब सोची। उसने सब औरतों को दावत पर बुलाया, उनके सामने फल और छुरियां रखवा दी।
जब ये औरतें छुरियों से फल काट रही थीं, तो जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया। औरतों ने जो ही यूसुफ को देखा, अपने होश खो बैठी। फलों की बजाय छुरियों से अपने हाथ काट बैठी। अब तो वो मान गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न कोई आम हुस्न नहीं है। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, तुम जुलेखा की बात मान क्यों नहीं लेते? यूसुफ अलैहिस्सलाम भला ये नाजायज बात कैसे मान लेते? उन्होंने फौरन इनकार कर दिया। तब वो औरतें हैरान होकर कहने लगी, यूसुफ इंसान नहीं, फरिश्ता है। सहेलियों की बात सुनकर जुलेखा कहने लगी, अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि कैसा नौजवान है, लेकिन मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगी। अगर उसने मेरी बात ना मानी तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। इन ख्यालात की बिना पर उन्होंने अपने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर मैं जेल में रहकर इन साजिशी और बदकिरदार औरतों से बच सकता हूं तो मुझे कैद मंजूर है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह भी सोचा, जिस अल्लाह ने उन्हें हासिद भाइयों से महफूज रखा, कुएं से जिंदा निकाला, किसी जालिम मालिक की बजाय मिस्र के शाही खानदान में पहुंचाया, वो अल्लाह उन्हें इस मुसीबत से भी नजात देगा। उधर बच्चों फूतीफार को भी इल्म था, यूसुफ पाकबाज है, सच्चे और ईमानदार है। उसे ये भी अंदाजा हो चुका था कि अगर यूसुफ उसके घर में रहे तो ये अच्छा नहीं होगा, जुलेखा उसकी इज्जत खाक में ना मिला दे। लिहाजा उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डलवा दिया। क्या? कैद में डलवा दिया? और वो भी बेगुनाह को? हाँ मेरे बच्चों, अल्लाह ताला ने यूसुफ की दुआ पूरी की, उन औरतों से उन्हें महफूज रखा। इसी दौरान 2 कैदी वहां लाए गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे भी मुलाकात की। मालूम हुआ उनमें से एक शाही बावर्ची है, दूसरा बादशाह को शराब पिलाने वाला है, यानी साकी। शाही बावर्ची ने बताया कि मेरा कसूर यह था कि एक दावत के मौके पर मेरी पकाई हुई रोटियों में किरकिराहट पाई गई थी। दूसरे शख्स को जेल की सजा इसलिए दी गई थी कि उसकी तैयार करदा शराब में से मरी हुई मक्खी निकल आई थी। जल्द ही दूसरे कैदियों की तरह ये दोनों भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकिफ बन गए। उनकी जहानत और अच्छे अखलाक के गर्विदा हो गए। एक दिन मामूल के मुताबिक यूसुफ उनके पास गए। दोनों उन्हें परेशान नजर आए। उन्होंने पूछा, क्या बात है भाई, क्यों परेशान हो? उन्होंने कहा, हमने अजीब ख्वाब देखा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, तुम अपना ख्वाब मुझे सुनाओ। इस पर साकी बोला, ऐ बुलंद किरदार दोस्त, मैंने ख्वाब देखा है। मैं बादशाह को शराब पिला रहा हूँ। मैं हैरान हूँ, इस ख्वाब का क्या मतलब है? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दूसरे से पूछा, तुमने क्या ख्वाब देखा? उसने कहा, मेरा ख्वाब ज्यादा अजीब है। मैंने देखा मेरे सर पर रोटियां हैं, परिंदे ठूंगे मार मार कर इन रोटियों को खा रहे हैं। क्या आप इन दोनों ख्वाबों की ताबीर बता सकते हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश रहे। दोनों और बेचैन हो गए। वो ख्वाबों की ताबीर जान लेने की शदीद ख्वाहिश महसूस कर रहे थे। आखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आप लोग इत्मीनान रखें, इंशाअल्लाह खाना आने से पहले ही मैं इन ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा।